دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، لب ہیں جب ملتے الفت سے ایک دوجے کو، لب ہے جب ملتے الفت سے ایک دوجے کو، تب ہی ہوتا ادا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، غم کے ماروں سیا کاروں بیماروں کی، غم کے ماروں سیا کاروں بیماروں کی، دھڑکنوں میں بسا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، بندگی خدا کی طرف کھینچتی، بندگی خدا کی طرف کھینچتی، ایک مبارک صدا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، رب نے کیسے جڑا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ میں سج رہا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، بعد رب احد حشر میدان میں، بعد رب احد حشر میدان میں، ایک شفیع آسرا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، جو ہمیں رب ہمارے سے ملوا گیا، جو ہمیں رب ہمارے سے ملوا گیا، وہ نشان وہ پتہ ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، کل نبیوں میں رب نے چنا آپ کو، کل نبیوں میں رب نے چنا آپ کو، نام میں
پھر چنا ہے محمد کا نام. نشین دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام. جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا، جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا. میں نے جب بھی لکھا ہے محمد کا نام. نشین دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام. نام لیوا ہے ارشد صحابہ کا تو، نام لیوا ہے ارشد صحابہ کا تو. یہ سلے میں ملا ہے محمد کا نام. نشین دلربا ہے محمد کا نام، اس قدر پرزیا ہے محمد کا نام. حضور علیہ السلام فرمانے لگے بھائی ایک بندے کے 3 بھائی تھے. مثال دیکھنا اور ذرا سمجھانے کا انداز دیکھنا میرے حبیب کا. کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے 3 بھائی تھے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا. اس نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے، بس جیسے ہی تو فوت ہو جائے گا تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور یہ تو بالکل اسلام کے قابل بھی نہیں، اس سے تو اتنا سا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. جو فوت ہوتے ہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رستہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خوش ہو کے بیٹھے اور غور سے سنیں. کہا تیرا رستہ اور ہے اور میرا رستہ. تو صحابہ کہنے لگے حضور اس سے سلام دعا بھی نہیں رکھنی چاہیے، کوئی تعلق نہیں، بھاڑ میں جائے یہ بھی کوئی بھائی ہے. کہتا ہے ختم ہوتے رشتے بھی ختم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ یار میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، تیرا میرا رشتہ ہے، اب تو بتا میں اگر مروں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا بھائی میں تیری تیمارداری بھی کروں گا، جب تو فوت ہو جائے گا میں تیرے غسل کے ساتھ بھی شریک ہوں گا، لوگوں کے تجھے کفن بھی پہناؤں گا، اپنے کندھوں پہ تجھے سوار کر کے قبر تک لے جاؤں گا، دفن میں بھی شریک ہوں گا، جنازہ بھی پڑھوں گا، تیری قبر پہ مٹی بھی ڈالوں گا، لیکن پھر ساری دنیا واپس آئے گی تو میں بھی آ جاؤں گا. نبی پاک فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے، پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے، تیمارداری بھی کر رہا ہے، غسل کفن بھی کر رہا ہے، جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے رہا ہے، دفن میں بھی شریک ہے. حضور فرمانے لگے اب اس نے تیسرے سے پوچھا کہ میں اگر دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں جب تیری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو تیری آسانی کے لیے تیرے سرانے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب تیری روح پرواز کرے گی تو میں قبر تک بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، لوگ دفن کر کے آئیں گے، میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا، اور جب پل صراط پہ تو گزرنے لگے گا اس وقت بھی میں تجھے حفاظت سے گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جب میزان عمل پر اعمال تلیں گے اس وقت بھی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تیری سفارش کروں گا تاکہ تو صحیح طریقے سے اعمال تل جائے. اور وہ بھائی کہنے لگا میرے بھائی جب تجھے شدید پیاس لگے گی تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا، تو میرا بھائی ہے، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اتنی دیر تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. تو میرے حبیب پاک علیہ السلام نے اب صحابہ سے پوچھا. حضور فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تعلق کسی کے ساتھ رکھنا چاہیے جو قبر میں بھی جائے، میزان عمل پر بھی جائے، میدان محشر میں بھی ساتھ جائے، پل صراط میں بھی ساتھ جائے، جنت میں داخلے کے وقت بھی ساتھ جائے، اسے لے جانا چاہیے. تو حضور نے فرمایا اب سنو میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا وہ جو پہلا بھائی تھا نا جس نے کہا تھا مرتے ہی تیرا میرا تعلق ختم، وہ تمہارا مال ہے.
जब तुम दुनिया से चले जाते हो तो फौरी तौर पर माल से तुम्हारा ताल्लुक, और भाई नाराज ना होना, बेटियां बेटे बड़ा प्यार करते हैं, पर अम्मा मर जाती है तो पहले बालियां उतारते हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है, सोने की बालियां पहले उतरती है, बड़ा प्यार है इनको, रो रहे होते हैं, पर बेटे पहले जेब में हाथ डालते हैं, शनाख्ती कार्ड संभालते हैं कि वहां बैंक में भी जाना है, वहां विरासत का इंतकाल भी दर्ज कराना है, बड़ा प्यार करते हैं, पर पहले देखते हैं तेरे बटवे से क्या निकला। तेरा माल उसी वक्त वारसों के कब्जे में चला जाता है। सुन और याद रख, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो जो भाई कह रहा था ना कि मैं कब्र तक तेरे साथ जाऊंगा, फिर जैसे दुनिया वापस आएगी मैं भी आऊंगा, फरमाया वो तेरे रिश्तेदार है, वो तेरा भाई है, तेरा बेटा है, तेरा दोस्त है, तेरे ताल्लुक वाला है, वो कब्र तक जाता है पर कब्र में नहीं जा सकता। तो महबूब फरमाने लगे, वो जो तीसरा था ना जो कहता था जन्नत में दाखिल करा के आऊंगा, वो तेरा नेक अमल है, वो तेरा नेक अमल है। फरमाया उसके साथ ताल्लुक मजबूत कर, वो तेरे दुखों का साथी, तेरी प्यास का साथी, तेरी परेशानी का साथी, तेरे पुलसिरात का साथी, तेरा छोटा अमल भी, छोटे से छोटा अमल भी कयामत में अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश करेगा और कहेगा, या अल्लाह इसने नमाज पढ़ी थी, इसे जन्नत में दाखिल कर दे, इसने रोजा रखा था, इसे जन्नत में भेज दे। तो महबूब फरमाने लगे, उससे ताल्लुक मजबूत कर जो तेरा पुलसिरात का भी दोस्त है। ये माल का तो लालच करता है, हालांकि तेरे मरते ही माल तो किसी और का हो जाएगा, किसी और का हो। अकलमंदा दा काम ना ही दिल दुनिया ते लाना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे, हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा, बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा, हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे, तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा, हुजूर क्या? फरमाने लगे, जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं, वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे? मेरी जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम? अभी भी तुझे समझ नहीं आई? वो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, समय हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज्यादा अता करेगा। हजरत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाबे उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूँ। हुजूर ने फरमाया, चच्ची क्या देखा? अर्ज की, हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया है। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया, चची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा, चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा, लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी, तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई, इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया,
बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं नबी पाक से कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हुजूर खड़े हो गए तो कहने लगे मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना। कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी। कहने लगे नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे, और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना है, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया और उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे। असल इस तरह था कि ये नबी पाक का हुजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की ज़ियारत कराई है वो जान सकते हैं नबी पाक का हुजरा था। तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीध है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती। तो हुजूर अक्सर ना नमाज के लिए जब निकलते तो हजरत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे। तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ लाके कहा फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह तंग कर रहे थे मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया जाए, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहबा कहती हैं ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे ना, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे कब, उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई। एक बच्चा आ गया यतीम बच्चा, उसने आके अर्ज की हुजूर 3 घर में अफराद हैं, मैं मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना 3 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंजर को भी जानता हूँ कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है पुत्र रोटी खानी है? नहीं मैं तो सवेरे जो खाया था वो हजम ही नहीं हुआ, मंजी शाही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं। एक दूसरे को तसल्लियाँ देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना हिकमत इलाही के तकाजे होते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए वो घर जहाँ से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया बिलाल जा ना जाके सारी अज़वाजे मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी। तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया है ना तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे हैं। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा 7 तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना हो तो हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर 3 भी दे देना कभी तो 30 साल खत्म ही नहीं होती। 30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की, और 7 हुजूर ने और भी तलकीन फरमाई। फरमाया एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया करना, ये ले जा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेरा। कहा फिक्र न करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया माँ इधर आओ ना जरा। या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया किस चीज ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए? किसने तुम्हें कहा
किस चीज ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए? अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था। और मैंने जाके उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा तो हुजूर फरमाने लगे, सुन फिर, जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मैं रोया। मैंने कहा महबूबा मैं आपको जानता तो नहीं, पर परदेश में लौट गया। कहते मैं रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, रोने की बात नहीं। मेरे कांधे पे थपकी दी, फरमाया परेशान ना हो। पहला ही जुमला, पूछा भी नहीं काम क्या है, ये भी नहीं बताया मसला क्या है। महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते हैं फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए। ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया। मैं कई दिनों का भूखा था। दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। जब मैं सैर हो गया ना और कुछ मुझे तसल्ली हुई तो फरमाने लगे बता तेरा मसला क्या है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऊंट बेचे थे। हुजूर को जानते नहीं अभी तक। 2 ऊंट बेचे थे, खरीद लिए अबू जहल ने। पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है दौड़ जा, कोई नहीं। हुजूर प्रदेश में लौट गया। सरदारों के पास गया हूं तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देगा। कहते हैं मैंने बड़ी बातें सुनाई तो महबूब ने हल्का सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। जिन्होंने करना कुछ नहीं ना होता उनके दावे लंबे चौड़े होते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो तो मुख्तसर बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी वाली बात नहीं, देने क्यों नहीं पैसे, देगा के, वह हल्की सी बात। हुजूर फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये काउंसलर साहब कभी रुका भी लिख दे तो इनकी मेहरबानी, और टेलीफोन कर दे तो फिर तो वो कहते हैं 3 साल का एहसान तेरे ऊपर चढ़ गया, तो मैंने पूरा ही फोन कर दिया तेरे नाम का। हालांकि जब वोट लेने आए थे तो कहते थे कौम का खादी मुझे। और फिर ये कौम का गरीब आदमी दरवाजे पे जाके बैठता है तो पता चलता है चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर पता चलता है ब्रेड ठंडा हो गया था तो गर्म होने गया। शर्म करो, शर्म करो। बादशाह मान करी ना बारसा, रब बेबारसा करके मार दे। अगर अल्लाह ने तुम्हें एहसास दिया तो गरीबों को रोल के मारोगे, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा सुबह क़यामत, अल्लाह तुमसे पूछेगा। हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे अल्लाह ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, रियाया बनाया, उसे अपनी रियाया के बारे में जवाब देना पड़े। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ कुर्बान जाऊं। कहते हैं नबी करीम ने नजरें झुकाई, सादा सा इमामा, सादा सा लिबास, और सारे रास्ते मैं बातें करता रहा, पर हुजूर ना हल्का हल्का मेरी तरफ देखते पर बोलते कुछ नहीं। कहते मैं रास्ते में सोचने लगा कि वो तो बड़ा गुंडा है और महबूब तो बोलते भी धीमा धीमा है, उसके साथ बात कैसे करेंगे। मैं 100 बातें करता हूँ, ये एक जवाब देते हैं। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, तो बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बड़े शम्स की तरह नर्म, रिज़ में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है, गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा, इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं, फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है, और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं, तू अगर इसे खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो,
तू कहे तो जाऊं, कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहाँ आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ। उस शानों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना। कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़, तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, वो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर है, माज अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा, मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करे पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे भाई किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है? हज़रत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं और सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफा पूछा भाई किसी ने रोजा रखा है? हज़रत सिद्दीक़ ने हाथ खड़ा किया, इसकी या रसूलल्लाह मैंने रखा हुआ है। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोजा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। हुजूर ने फरमाया उमर तो जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, ठहर ना जरा, रुक तो सही। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोचा पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुजूर मैं भी जरा फजर के वक्त जल्दी उठा हूं तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तीमारदारी करके आया हूं। हजरत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? खाना खिलाया किसी मिस्कीन को? हजरत सैयदना उमर फारूक कहते मैंने फिर अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कोई चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर नहीं जाता, जरा ठहर ना, जरा नजारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक़ अकबर का जलसा हो रहा, तो ठहरना। हुजूर ने फिर पूछा भी किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? तो हज़रत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके चुपके अबू बकर को देख रहा था, कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह दूं दो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी किन कामों में, बस ये नुक्ता उन्होंने पा लिया था। हुजूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा अर्ज की या रसूलल्लाह सवेरे उठा हूं तो छोटा बेटा भी उठ गया और मेरे वुजू करके सुन्नत पढ़ के माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियां भी पका दी। तो हुजूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले हैं ना घर से तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूं। कोई दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था, अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूँ। हजरत उमर फारूक कहते मैंने गर्दन झुका ली और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ए अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनासा समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने, तारी। उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाएं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी पड़ी। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, कुछ लोगों ने हुजूर की जियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, हज़रत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हज़रत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की? तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, वो माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ये क्यों शुबा हुआ?
تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا، اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا۔ تو من شدی من تو شدم، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کے کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے۔ شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا۔ ہمیں بتائیے اسماعیل حقی صاحب، ہم دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست اسے کہتے ہیں جسے ہم دل سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے تو تمام مشرکین ایک ایک کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے ایک اہم خبر لائے ہیں، کیا آپ نے سنا کہ آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نہیں سنا۔ مشرکین نے بڑے جوش و خروش سے انہیں بتایا۔ آپ کے دوست نے کہا کہ وہ بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر کیا اور پھر اللہ پاک کے جمال کا دیدار کیا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ بات میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے؟ مشرکین نے کہا ہاں، تو آپ اب بھی ان پر یقین رکھتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سن کر مشرکین سر جھکائے وہاں سے چلے گئے۔ اگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست سے سچی محبت نہ کرتے تو وہ صدیق نہ ہوتے سلطان موسم۔ وہ اپنے حضرت رابعہ بصریہ نے اونٹ پالا ہوا تھا، بڑا اللہ بڑا غفار ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ بڑا ہی رحمت کرنے والا۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، یہ کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ تیرا شکر کیسے ادا کروں؟
تو مجھ پر نعمت کرتا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو ایک نعمت اور فرما دے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو اور نعمت ادا کر دے مالک تیری نعمت پر نعمت فضل پر فضل عطا پر عطا کرم پر کرم ہوتا جاتا ہے تو میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں کس نعمت کا شکر ادا کروں شازمان بالته وګوره مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم